जैसा कि आप सब जानते हैं, बियॉन्ड शुगर क्रिएट किया गया है आप सभी के लिए इन कोलैबोरेशन विद आरएसएसडीआई एंड इंडियन सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी, ताकि आप तक सटीक जानकारियां पहुंचती रहें डायबिटीज के बारे में और उसको कैसे मैनेज करना है इनके बारे में। ना सिर्फ हम आपके लिए डेली बेसिस के ऊपर काफी इंफॉर्मेशन पोस्ट करते हैं, बट आपके लिए हम इनवाइट करते हैं आपसे मिलने के लिए देश के जाने माने डॉक्टर्स को, जो आपसे सीधे बात कर सके एक दोस्त की तरह और आपके सारे सवालों के जवाब भी दे सके। Today, in the same context, I am very glad to welcome Dr. Om J. Lakhani from the city of Ahmedabad. Sir, welcome to the show. Thank you. Thanks so much, We Sanjeev. will, yeah. So today we will cover a very, very important topic, and we know that festival season is coming in our country. तो पहले तो आप सभी को आने वाले फेस्टिवल सीजन के लिए जो शुरू हो चुका है ऑलरेडी, उन सब के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को। और ये अगले 2-3 महीने काफ़ी क्रिटिकल होते हैं उन सब लोगों के लिए जिनको डायबिटीज़ या उससे रिलेटेड दिक्कतें हों, ताकि कैसे हम अपने आप को मैनेज करें। और टुडे वी विल ट्राई टू लर्न फ्रॉम डॉक्टर लखानी दैट हाउ डू वी enjoy our festivals to the full while still managing our diabetes well. So, and before I further move forward, let me also give a short formal introduction of Dr. Lakhani. He's a well-known endocrinologist from city of Ahmedabad. Currently, he is working as an endocrinologist at Zydus Hospital in Ahmedabad, and has been a bright student academician from his early days. Has remained as gold medalist while doing his MBBS and even during his masters in medicine. And post that, he also received the Young Scholars Award by the Endocrine Society of India and various other awards. So we know कि आज we have an expert with us whom we can fully rely and take his pearls of wisdom with us. Let me, sir, hand over the stage to you here for your opening comments. That what are the basic common challenges which people may face in these times, coming times, and how do they overcome that. Over to you for your opening comments. Yeah. So thank you, Sanjeev ji, for the kind introduction. मैं सब सभी viewers को we are having an upcoming season of festivals, right? So अभी Navratri has already started. It's a big festival in Gujarat. So अब जो आ सकते हैं, I would suggest that it's a good time to visit Gujarat. It's really festive or vibrant community right now. और cricket भी चल रहा है, so we're all welcome. So hopefully, India does very well as a a season gift for all of us. So diabetes during this period of time comes with its challenges. मतलब बहुत सारे डाइट के हिसाब से कुछ चेंजेस आते हैं. एट फेस्टिवल टाइम्स हम थोड़े एक्टिविटी वाइज भी चेंज. For example, you become more relaxed. You're probably not going for work. You have a vacation. बहुत सारे टाइम हम हमारे सोशल इंटरेक्शंस में चेंजेस आते हैं. हम हमारे उन दोस्तों को मिलते हैं जो हम जनरली हम जिनको नहीं मिलते हैं. यू मीट सम ऑफ योर अदर फैमिली मेंबर्स जो जिनको बहुत टाइम से नहीं मिले. तो ये सब चेंजेस की वजह से डायबिटीज केयर पे, ब्लड प्रेशर के मेडिकेशंस पे, हार्ट के मेडिकेशंस पे, किडनी के दवाइयों पे थोड़ी चेंजेस आती हैं. तो ये हम आज डिस्कस करेंगे डिटेल में. और इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज फील फ्री टू पोस्ट देम, तो हम विल बी एबल टू डिस्कस दैट एज वेल. Very nice. Thank you, not only for wishing all of us a good festival season, but also inviting us to Gujarat to watch cricket and Garba. More than I think people would be keen for that. Sir, as we move forward, you mentioned about that. This time would be little special, and people with who have diabetes or related situations, it's important for them. Uh, but why this is important? Can you briefly touch upon that people with diabetes, they need to pay special attention during this time, specifically related to their diet and the lifestyle. या सो देखिए, बहुत टाइम हम लोग जब व्हेन वी कम बैक फ्रॉम द दिवाली हॉलीडेज, जब हम ओपीडी में आते हैं तो बहुत सारे पेशेंट के पास ये एक रेडी एक्सक्यूज होता है कि सर हम आपको, पहला तो ये होता है कि सर हम आपको दिखाने इसलिए नहीं आए क्योंकि हम छुट्टी पे थे, आप छुट्टी पे थे, राइट? सो कभी कभी फॉलोअप्स जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज ऑफ हॉलीडे सीजन, ट्रैवलिंग, अदर थिंग्स.
दूसरा इशू ये रहता है कि कभी कभी मेडिकेशंस वापस लेने बाई परचेज करने के भूल जाते हैं. पेशेंट्स ऑफन फॉरगेट टू बाय द मेडिकेशंस. समटाइम्स दे आर नॉट अवेलेबल ऑल्सो. कभी कभी दुकानें कुछ बंद होती हैं, नजदीक की दुकानें बंद हैं, कुछ स्टॉक अवेलेबल नहीं होता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो लॉट ऑफ टाइम्स पेशेंट्स कम विद दीज एक्सक्यूजेस दैट दवाइयाँ नहीं मिली, हमने खरीदी नहीं, सो ऑन एंड सो फोर्थ. एंड बियॉन्ड दैट ऑब्वियसली द एलिफेंट इन द रूम इज द डाइट, राइट? बिकॉज हम लोग थोड़े रिलैक्स हो जाते हैं, लिबरल हो जाते हैं इन टर्म्स ऑफ डाइट. There's a lot of sweets and goodies and a lot of things which जो हमें सब बहुत सारी चीजें जो पसंद हैं फेस्टिवल के वक्त. जनरली खाना भी थोड़ा मजेदार होता है. Sometimes you have some really good cooks in a family who use their best skills to make the best of food. So ये सब challenges हैं जो हमारे लाइफ में आती है. और इसके वजह से हम कॉमनली देखते हैं. और आई एम नॉट द ओनली पर्सन. आप किसी भी डॉक्टर से पूछें तो दिवाली के बाद थोड़ा ओपीडी में जो हमारा HbA1c लेवल्स होता है वो ज्यादा होता है, शुगर का लेवल ज्यादा होता है. सो थोड़ा एक हमारे लिए भी थोड़ा एक वेकेशन के बाद थोड़ा चैलेंज हो जाता है कि हाउ टू ब्रिंग दिस बैक टू नॉर्मल. सो ये एक कॉमन इशू है. और राइट एट द आउटसेट मैं ये बताना चाहूंगा कि मैं एक फेस्टिवल को दो तरीके से, दो एंगल से देखता हूँ. एक है जो सोशल एंगल है, जो फेस्टिवल एक अपॉर्चुनिटी है कि हम हमारे दोस्तों से मिलें, हमारे रिश्तेदार से मिलें, हम सोशल हमारे कम्युनिटी से कनेक्ट करें, राइट? जैसे आपने गरबा की बात की तो गरबा इज अ गुड अपॉर्चुनिटी टू मीट फ्रेंड्स. आपके जो नेबर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनसे आप मिलें, उनसे जुड़ें. और that's a social part of it, right? which is very welcome. आप डायबिटीज के बारे में अगर कोई भी लिटरेचर पढ़ेंगे या अगर आप साइंस पढ़ेंगे, डेटा पढ़ेंगे, एक चीज बताई गई है कि जहां पे भी जो लोग कम्युनिटी से अटैच्ड हैं, जो अपने दोस्तों से, फैमिली से कनेक्टेड हैं, जो एक आइसोलेशन में नहीं लेकिन एक ग्रुप के तरह रहते हैं, उनका डायबिटीज कंट्रोल हमेशा बेटर रहता है कंपेयर टू दोज पीपल हु लिव इन आइसोलेशन, जिनके फ्रेंड्स नहीं है, जिनकी फैमिली नहीं है, जो अकेले रहते हैं, जो ज्यादा लोगों से कनेक्ट नहीं होते हैं, उनके कंपैरिजन में जिनका ओवरऑल कनेक्शन ज्यादा है, सोसाइटी से एंगेजमेंट ज्यादा है, उनका ओवरऑल ब्लड शुगर कंट्रोल बेटर रहता है. बिकॉज हमेशा हाँ ऑफ कोर्स कुछ ऐसे लोग होते हैं कि यार एक गुलाब जामुन से क्या होगा, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो हमारे फैमिली में जो होते हैं, जो हमारा ख्याल रखते हैं, जो हमेशा कहते हैं कि नहीं नहीं देखो तुम्हें डायबिटीज है तो वील कीप कंट्रोल ऑफ योर डाइट. हम तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल बनाएंगे जो जिसमें शुगर ना हो. सो एक तरीके से एक सोशल कनेक्ट होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है. लेकिन एट द सेम टाइम थोड़ा द अदर एंगल इज द फूड पार्ट, राइट? सो फेस्टिवल्स हमेशा एक पीरियड होता है जब स्वीट्स का ज्यादा इंपॉर्टेंस है हमारे सोसाइटी में. चाहे आप इनफैक्ट एनी सोसाइटी एनी फेस्टिवल आप देखें, हम लोग स्वीट्स के साथ सेलिब्रेट करते हैं, राइट? आप एडवर्टाइजमेंट्स भी देखोगे तो बहुत सारे चॉकलेट्स के एडवर्टाइजमेंट आई रिमेंबर दे ऑलवेज यूज्ड टू से कि कुछ मीठा हो जाए, दैट काइंड ऑफ थिंग. सो स्वीट्स का बहुत ही इम्पोर्टेंस है फेस्टिवल्स में. और इस पीरियड जैसे मैंने बताया, कुछ हमारे ऐसे रिश्तेदार हमेशा होते हैं जो कहते हैं कि यार एक गुलाब जामुन से क्या होगा, राइट? एक चॉकलेट से क्या होगा, राइट? सो ये एक हमारा जो सेल्फ कंट्रोल है उसका एक टेस्ट है, राइट? तो मैं ये कहूंगा कि अगर आपको डायबिटीज है, एक सिंपल आपको रूल में बताऊंगा, आप जो सोशल पार्ट है, राइट, उससे आप एंगेज हो, राइट? वो आपके लिए बेटर है. आप अपने फ्रेंड्स से मिलें, आप अपने दोस्तों के साथ मिलें. आप अगर आप वेकेशन पे हैं तो आप घूमने जाएं, वॉक करें, नेचर के साथ कनेक्ट हो, राइट? दिस इज ऑल गुड. ये एक अच्छी बात है. ये आपके डायबिटीज कंट्रोल में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों पीरियड में आपको हेल्प करेगी. एट द सेम टाइम अगर आप जो दूसरा एंगल है, जो डाइट वाला पार्ट है, मैं ये कहूंगा कि आप सेल्फ कंट्रोल जो है उस पर बहुत ही ज्यादा फोकस करें, राइट? यू नीड टू बी नो मीन्स नो, राइट? सो इफ लेट्स से अगर आपका शुगर अच्छा कंट्रोल में नहीं है और आपको शुगर खाने से मना किया गया है, चाहे वो आपके कोई भी रिश्तेदार हो, चाहे कितने भी बुजुर्ग हो, कितने भी एल्डर हो, कितने भी क्लोज हो, you need to say learn to say no, right? I don't take sweets. मैं स्वीट्स सो एक मैं आपको एक सिंपल तरीका बताऊंगा कि इन विच यू कैन लर्न दिस थिंग. एक बहुत सारे जो सेल्फ कंट्रोल वाले या जो हैबिट कोचेज हैं वो बताते हैं ये कि आप इंस्टेड ऑफ सेइंग के मैं स्वीट नहीं खाऊंगा,
it's better to say that I am the kind of person who doesn't have sweets, right? मैं एक ऐसा पर्सन हूँ जो मैं स्वीट्स खाता ही नहीं हूँ, राइट? या तो मुझे मुझे स्वीट्स से मुझे पसंद नहीं है, राइट? सो यू ट्राई टू इम्बाइब दैट एज अ पर्सनालिटी, राइट? मैं ऐसा पर्सन हूँ जो स्वीट्स खाता ही नहीं हूँ, राइट? या तो फिर आप, बिकॉज क्या है, डायबिटीज एज एन एक्सक्यूज ना लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, लेकिन आप अगर ये एक्सक्यूज बनाएंगे कि मुझे मुझे है ना मुझे पसंद ही नहीं है, आई वुड रेदर टेक समथिंग विच इज सेवरी इंस्टेड ऑफ स्वीट, राइट? सो आप हमेशा, इट्स ऑलवेज बेटर दैट आप सेल्फ कंट्रोल जो है उस पर आप फोकस करें। और अगर आपको मना किया गया है कि यू डोंट शुड नॉट टेक स्वीट्स, यू शुड कंप्लीटली अवॉइड टेकिंग स्वीट्स, राइट? ये बिल्कुल ही जरूरी है। फेस्टिवल ये पीरियड नहीं है कि आप थोड़ा लैक्स हो जाए, यू नीड टू बी इक्वली विजिलेंट, और आप अपने सेल्फ कंट्रोल पे ज्यादा ध्यान दें। ग्रेट। आई थिंक आपने सर बहुत सारी चीजें टच की अपने इन कमेंट्स के अंदर। टू बिगिन विद, फॉर ऑल माय व्यूअर्स, सो दैट यू डोंट फॉरगेट, so don't hide behind the festivals for a bad blood sugar. Celebrate them. I think Dr. Lakhani says, don't avoid the social part of it, enjoy it. And if you are more socially active, it will probably have a positive impact in on controlling your diabetes. That is one thing he said. Second, उन्होंने बोला कि हम कई बार जो है इनडिसिप्लिन्ड हो जाते हैं, हम डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं उस दौरान, एंड देन विल से कि सर मैं 3-4 महीने के बाद इसलिए आया हूँ कि फेस्टिवल्स में आ नहीं पाया, ट्रैवल करने चले गए तो मेडिसिन भूल गए अपनी। तो उन सब चीजों का आपको खुद ध्यान रखना है। अगर बेहतर होगा कि अगर आपका अगर शुगर थोड़े से डीरेंज्ड अगर रहते हैं, तो आप फेस्टिवल सीजन से पहले अपने डॉक्टर से मिलें, एक प्रॉपर एडवाइस लें, और उसके बाद मे बी आफ्टर 3-4 मंथ्स अगेन गो फॉर अ फॉलो अप। अगर आप कहीं ट्रैवल करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि ये छुट्टियों का समय होता है, कई लोग ट्रैवल करने के लिए चले जाते हैं बाहर, तो अपने पास पूरी अपनी दवाइयों का स्टॉक भी जरूर रखें। You again and again, sir, focused on कि you know खाना एक जो है important चीज है, diet is important, and you gave some good tips also that how to avoid a few things. Now, eventually, food is cooked in the family only and in the society. राइट। So आप हमारे घर में अगर डायबिटीज किसी को है, तो फैमिली मेंबर ही खाना कुक करते हैं, और या फिर अगर आपके घर कोई आ रहा है अगर बाहर से, तो भी आप देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी that you know some percentage of people can be diabetic. So what's your राइट। message for the good cooks in the home? क्योंकि हमारी जो अक्सर जो डाइटरी हैबिट्स हैं वो काफी हाई ऑन कार्बोहाइड्रेट्स और हाई ऑन शुगर्स होती हैं। So you know any advice you have to sort of how it can be modified to for for make it little diabetes friendly? यस। सो अ फ्यू टिप्स मैं बताना चाहूँगा। एक तो चीज़ है जो बहुत सारे लोग जानते भी हैं, बट आलमंड्स, बादाम जो है, इट्स इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ लॉट ऑफ इंडियन जो फेस्टिवल का फूड होता है। बादाम एक ऐसी चीज़ है जो टेस्ट में भी अच्छी है, एट द सेम टाइम इट डजंट इट्स इट्स इनफैक्ट वेरी हेल्पफुल फॉर डायबिटिक पेशेंट्स, राइट? आलमंड्स जो है वो जो कार्बोहाइड्रेट है, अब आलमंड्स पर से उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होते हैं। सो आलमंड्स जो है वो फिलिंग भी होता है, उसमें प्रोटीन भी होता है, कुछ थोड़े अच्छे फैट्स भी होते हैं, और इट्स वेरी टेस्टी एज वेल, और इट्स एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर इंडियन फेस्टिवल फूड, राइट? सो अगर आप देखेंगे, फेस्टिवल फूड में देखेंगे, कहीं ना कहीं आलमंड्स का इंपॉर्टेंस होता है, राइट? तो मैं ये कहूंगा कि आप ये एक अपॉर्चुनिटी है कि आप आलमंड्स को आपके डाइट में ज्यादा इनकॉर्पोरेट करें। आई थिंक आई एम अ बिग फैन ऑफ दिस आलमंड्स। और अगर आप रिसेंटली आप संजीव जी डॉक्टर अनूप मिश्रा को जानते होंगे, राइट? सो इज फ्रॉम दिल्ली। सो उन्होंने एक रिसेंटली एक स्टडी पब्लिश की थी जिसमें उन्होंने खाने से पहले, अगर आपको डायबिटीज है तो आप खाने से पहले, आप जो भी नॉर्मल खाना खा रहे हैं उसके पहले कुछ आप आलमंड्स लें। तो उन्होंने दिखाया कि जो लोग आलमंड्स लेते हैं खाने से पहले, उनका शुगर खाने के बाद कम होता है कंपेयर टू दोज हु डोंट टेक आलमंड्स। सेम फूड खाते हैं लेकिन आलमंड्स पहले लेते हैं। सो दिस इज कॉल्ड कार्ब्स लास्ट, मतलब आप पहले ऐसे कुछ फूड के प्रोडक्ट्स लें जो आपका जो कार्बोहाइड्रेट है उसका एब्जॉर्प्शन कम करें। सो आलमंड इज वन सच थिंग विच कैन रिड्यूस द कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्प्शन। सो मैं एक यूजफुल टिप देना चाहूंगा कि अगर आप, इफ यू आर समबडी हु is going to take a lot of festive food, almonds के साथ आपके मील्स को शुरू करें।
ये सोशली भी एक्सेप्टेबल है। आप अगर बोलोगे कि अगर आप फैमिली के साथ लंच करने बैठे हैं या डिनर करने बैठे हैं, तो आप बोलोगे कि मैं जनरली आई स्टार्ट माय डाइट विद आलमंड्स। सो ये एक अच्छी हैबिट भी है। बहुत सारे लोग आपको देख के शायद इसको फॉलो करें। अगर कहते हैं तो मतलब बताना कि फेसबुक पे हमने सुना था कि ये एक तरीका है, राइट? सो दैट्स अ गुड वे ऑफ गेटिंग अदर्स आल्सो टू इनकलकेट अ गुड हैबिट। दूसरी बात यह है कि जैसे स्वीट्स की बात आती है, तो मैं आई एम वेरी फर्म बिलीवर इन द फैक्ट कि देखिए डायबिटीज जो है ना, इट्स अ डिजीज ऑफ डिसिप्लिन, राइट? मैंने ये अपने जितना भी एक्सपीरियंस है डायबिटीज में, मैंने ये देखा है कि जो लोगों का डिसिप्लिन अच्छा है, सेल्फ कंट्रोल अच्छा है, दे डू वेल ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस। अब जब मैं डिसिप्लिन की बात करता हूँ तो हर चीज आती है, हर एलिमेंट आती है। दवाइयाँ टाइम पे लेनी, डॉक्टर्स को टाइम पे दिखाना, ये एक एस्पेक्ट है। एट द सेम टाइम आप डाइट को जो रिकमेंडेशन है उसको फॉलो करें स्ट्रिक्टली। आप एक्सरसाइज के रिकमेंडेशंस को फॉलो करें, चाहे जो भी है, मतलब चाहे वो चाहे वो फेस्टिवल हो या छुट्टी हो या आप बिजी हो, कोई भी सर्कमस्टेंस में आप इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें। सो ये डिसिप्लिन वाली जो चीज है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देयर इज अ सेइंग दैट बहुत सारे जो आप क्रिकेट के बात पे वापस आते हैं, तो बहुत सारे प्रीमियम एथलीट्स जो हैं, क्रिकेटर्स हैं, जो जो इंटरनेशनल लेवल पे खेलते हैं, फुटबॉलर्स हैं जो इंटरनेशनल, जो आपके ओलंपिक्स के जो एथलीट्स हैं, राइट? उनमें और बहुत सारे दूसरे लोग जो हु हैव नॉट मेड इट टू दैट लेवल, दोनों में डिफरेंस ये है कि जो प्रीमियम एथलीट्स होते हैं, जो प्रोफेशनल एथलीट्स होते हैं, वो अपनी ट्रेनिंग कभी नहीं छोड़ते हैं। दे नेवर लीव द ट्रेनिंग, वेदर वो दिवाली है। आप शायद बहुत सारे टाइम तो क्रिकेट मैचेस दिवाली के एक दिन पहले होती है, राइट? इवन वेस्ट में, जैसे आप ऑस्ट्रेलिया में देखेंगे तो बॉक्सिंग डे, विच इज वन डे आफ्टर देयर क्रिसमस, दैट इज कंसिडर्ड टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट क्रिकेट मैच, राइट? सो उनकी बॉक्सिंग डे पे एक टेस्ट मैच होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? तो आप देखें कि वो क्रिसमस के एक दिन बाद दे आर गोइंग देयर प्लेइंग क्रिकेट, राइट? इंटरनेशनल लेवल क्रिकेट। सो ये डिसिप्लिन की बात आती है, राइट? वैसे ही हम भी चाहे वी आर नॉट प्रोफेशनल एथलीट्स, बट एट द सेम टाइम हम हमारे जो डिसिप्लिन है उसको ना छोड़ें। तो चाहे वो फेस्टिवल है, आप अपने माइंड में आप सोचे कि मैं आई एम अ प्रोफेशनल पर्सन, आई एम अ पर्सन हु इज वेरी डिसिप्लिन, राइट? सो इन दैट सेंस आप जो डाइटरी रिकमेंडेशन जो भी डॉक्टर है, देखिए हर पर्सन का सर्कमस्टेंस अलग है। शायद आपको आपके डॉक्टर ने अलाउ किया है कि कुछ स्वीट्स कभी आप ओकेशनली ले सकते हैं, लेकिन अगर आपका शुगर पुअरली कंट्रोल है तो आपके डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली बोला होगा कि चाहे दिवाली हो या क्रिसमस हो या ईद हो, फेस्टिवल चाहे जो भी हो, आप स्वीट्स नहीं खाएंगे, राइट? सो आपको जो भी आपके डॉक्टर्स या डाइटिशियन ने या न्यूट्रिशनिस्ट ने जो भी रेकमेंड किया है, आप उसको इस फेस्टिवल के दौरान छोड़े नहीं, फॉलो दैट रिकमेंडेशंस। हाँ, ऐसे फैमिली में लोग होंगे जो कहेंगे कि नहीं यार फेस्टिवल है तो थोड़ा आप इसको करें, बट लाइक आई सेड, डिसिप्लिन इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आप डिसिप्लिन को फॉलो करें, और अगर आप ये करेंगे तो यू विल बी डूइंग वेल। आपका दिवाली के बाद आप जब हमें मिलने आएंगे तो विल बी क्वाइट हैप्पी दैट योर शुगर्स आर एज गुड एज दे वर बिफोर दिवाली। Great. So I think two things very clearly. Discipline is important. See, you have to keep your own discipline. हम ये नहीं कह सकते कि भाई किसी और के कहने की वजह से हमने अपना डिसिप्लिन तोड़ दिया, बिकॉज डिसिप्लिन इज ऑलवेज सेल्फ डिसिप्लिन। एंड आई थिंक सेकेंडली डाइटरी टिप दी उन्होंने, डॉक्टर लखानी ने, कि एक आलमंड्स के बारे में, बादाम अगर डाइट में अगर हो या उनसे पहले हो, सो इट कैन बी हेल्पफुल टू यू। सो रिलेटेड क्वेश्चन, आई विल आस्क यू, I'm separately getting that there's a lot of things which are talked about artificial sweeteners these days, या and you go to a मिठाई shop और वहां पर लिखा होगा कि वो ये डायबिटीज के पेशेंट के लिए ये मिठाइयाँ हैं, या फिर घर में काफी एक्सटेंसिव जैसे कई बार यूज करने लगते हैं फेस्टिवल्स में। इज इट so what's your take on this? Is it safe, unsafe? Is it like worthwhile to go for it? What's your expert's view on this? या सो संजीव जी, स्वीट्स की अगर बात की तो आई जस्ट टेल यू एज अ सॉर्ट ऑफ अ डिस्क्लेमर, माय इन-लॉज own a very big sweet chain in southern part of Gujarat, right? So बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि आप करवाते भी आप हो शुगर और ट्रीट भी आप करते हो, राइट? सो हैविंग सेड दैट, स्वीट्स, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स थोड़ा टॉपिक ऑफ डिबेट है। ये एक मेरे ख्याल से दिस इज अ 30-minute डिबेट ऑन इट्स ओन, बट एट द सेम टाइम मैं कुछ टिप्स आपको ये देना चाहूंगा। देखिए, आर्टिफिशियल स्वीटनेस के बारे में बहुत सारी चीजें आती हैं, कभी बोलते हैं कि अच्छी है, कभी बुरी है, देयर आर लॉट ऑफ मिथ्स अबाउट आर्टिफिशियल स्वीटनेस। मैं कुछ क्विक टिप्स आपको देना चाहूंगा अबाउट आर्टिफिशियल स्वीटनर। फर्स्ट थिंग, आर्टिफिशियल स्वीटनेस आर नॉट हार्मफुल,
राइट. सो ये बहुत सारे टाइम ये इन्फॉर्मेशन आती है कि इससे ये होता है वो होता है, विच इज नॉट ट्रू. सो जो करंट जनरेशन ऑफ आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं, जैसे एस्पार्टेम है या सुक्रालोस है या स्टीविया है, दीज आर नॉट हार्मफुल, राइट. दीज आर हार्मलेस. सो आप अगर आप इसको लेना चाहें तो यू कैन टेक इट, राइट, इन मॉडरेशन. ऑफ कोर्स एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज नॉट गुड, बट मॉडरेशन में जो यूजुअल क्वांटिटीज में जो रिकमेंडेड है, आप उतने क्वांटिटीज में लें तो इट इज फाइन. बट एट द सेम टाइम दूसरा एंड में ये बताना चाहूंगा कि आर्टिफिशियल स्वीटनेस से कोई डायबिटीज पे कोई ऐसा मेजर बेनिफिट नहीं है, राइट. ये अगेन अर्लियर टाइम्स लॉट ऑफ दीज कंपनीज व्हिच मेड आर्टिफिशियल स्वीटनेस यूज्ड टू मेक दिस क्लेम्स. आपने पुराने में देखोगे कि देयर यूज्ड टू बी लॉट ऑफ मॉडल्स हु यूज्ड टू से दैट ये हम ये लेने से, ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट आर्टिफिशियल स्वीटनर लेने से मेरा वेट कम हो गया, व्हिच इज नॉट ट्रू. सो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स डू नॉट प्रोड्यूस वेट लॉस. They do not reduce blood sugar. Only thing it does is कि जो आप शुगर लेते हैं उसके जगह पे वो सब्सटीट्यूट हो जाता है, और वो आपके जो शुगर का टेस्ट है उसको वो सब्सटीट्यूट करता है. ठीक है. तो ये दैट इज द ओनली मेजर बेनिफिट ऑफ आर्टिफिशियल स्वीटनेस. तो अगर आप आपको शुगर, आपको क्रेविंग है, और अगर आप आर्टिफिशियल स्वीटनर वाली चीजें लेते हैं, और या तो जो स्वीट्स अवेलेबल है आर्टिफिशियल स्वीटनेस की जो दुकान में कमर्शियली अवेलेबल है, यू कैन टेक इट. यू आर free to take it as a person with diabetes. You can take that very easily. There is no problem. But उसमें ध्यान ये रखें कि आप जब स्वीट्स कंज्यूम करते हैं तो आप स्वीट में शुगर वाली कंपोनेंट तो है, but at the same time it also has lot of other carbohydrates, right? So अगर आप एक लड्डू लेते हैं तो लड्डू में स्वीट वाला पार्ट शुगर तो है, बट बाकी जो लड्डू है उसमें भी कार्बोहाइड्रेट है, राइट. सो ये चीज को ध्यान, अब इसको कहां हम सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, राइट. वी आर नॉट सब्सटीट्यूटिंग दैट, राइट. दैट इज इक्वली एनी फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज इक्वली हार्मफुल टू अ पर्सन विद डायबिटीज, राइट. सो भले आर्टिफिशियल स्वीटनर्स वाली जो स्वीट्स हैं वो इट हैज अ मार्केट, इट हैज सम पीपल लाइक इट, बट मैं मतलब पर्सनली मेरे रिकमेंडेशन से इट्स नॉट अ सब्सटीट्यूट फॉर आइदर स्वीट्स और एज अ सब्सटीट्यूट फॉर पीपल विद डायबिटीज. सो अगर आप कंज्यूम करना चाहें, आपको पसंद है, ठीक है, इट्स गुड फॉर यू, इट्स फाइन फॉर यू, बट एट द सेम टाइम इट्स नॉट समथिंग के जो आप एक इसको एक हैबिट बनाए, बिकॉज उसमें भी खुद में भी देयर आर लॉट ऑफ अदर कार्बोहाइड्रेट्स व्हिच इज इक्वली बैड. फाइनली इस पॉइंट पे मैं एक और ये मेरा पर्सनल टेक है, अगेन फ्रॉम, मैं एक कमर्शियल पर्सपेक्टिव से भी देखें, अगर देखें तो बहुत सारे लोग जो आर्टिफिशियल स्वीटनर लेते हैं, दे डोंट, शुगर में है ना, देर आर, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट इट्स टेस्ट, देर इज एन एलिमेंट ऑफ quote unquote addiction also. People get craving, right, for sugar. People don't get that craving for artificial sweetness, right. तो उनको जो जो मजा जो शुगर में आता है वो unfortunately they don't get from artificial sweetness, and that's why the concept of artificial sweetness has never taken off, right. अगर आप देखेंगे बहुत सारे now companies used to promote it, but it's now very limited in terms of promotion. ज्यादा उतना लोग हाइप नहीं बनाते जैसे एक जमाने में होता था, बिकॉज दे ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट ये कुछ इतने कंज्यूमर्स को इतना पसंद नहीं है, राइट. दिस इज नॉट समथिंग विच पीपल लाइक. सो हैविंग सेड दैट, अगर आप स्वीट्स इफ आपके फैमिली में कोई किसी को डायबिटीज है और आप चाहते हैं कि ये हमारे फेस्टिविटीज में एंजॉय करें और मे बी वो एक आध स्वीट ले तो शायद सबको आपका मोरल भी बूस्ट हो, तो उस सिचुएशन में मे बी यू कैन हैव आर्टिफिशियल स्वीटनर वाली स्वीट. बट अगर आप उसको भी अवॉइड कर सकें, इट इज बेटर, राइट. दैट इज व्हाट आई फील. Thank you so very much. I think this was an important subject, and you said it rightly कि शायद इसके ऊपर बात करने के लिए हमें काफी समय चाहिए. बट इम्पोर्टेंट चीज जो डॉक्टर लखानी ने बताई हमारे व्यूअर्स के लिए कि अगर आप मिठाइयाँ लेने के लिए जाते हैं या घर में भी कोई भी डिश कुक करते हैं जिसमें जो काफी स्वीट होती है, तो अगर आप उसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर का अगर यूज अगर हो रहा है तो उसमें जो शुगरी पार्ट जो है उसकी तो कैलोरीज कम हो जाएंगी, मगर ये याद रखिए कि वो सिर्फ शुगर की वजह से कैलोरीज नहीं बढ़ रही है उसमें, शुगर पार्ट की वजह से देर आर मल्टीपल इंग्रेडिएंट्स इन दैट डिश, इन दैट स्वीट, विच विल स्टिल इंक्रीज योर ब्लड शुगर लेवल और उसको वो थोड़ा सा डीरेंज कर सकते हैं. Therefore, discipline is very, very important. However, having said that, as you mentioned, it is safe to take artificial sweeteners, and I think self-discipline and moderation is the only answer to it. Very quickly, sir, I will also seek your help in asking. Now, physical activity plays a very important role in managing diabetes for anyone. And you mentioned, about that how even players will make sure that they will never lose their training. बट एज अ कॉमनर, मेनी टाइम्स हम लोग कैरिड अवे हो जाते हैं कि भाई
अभी तो मतलब रोज रात को गरबा के लिए जा रहे हैं, डांडिया के लिए जा रहे हैं, और सुबह जल्दी नहीं उठ पा रहे हैं, एंड देयरफॉर फिजिकल एक्टिविटी, या बहुत सारे दोस्तों को मिलने के लिए चले गए, और एंड इट टेक्स अ बैक सीट. Any quick advice you have for people so that they don't lose out on their physical activity, and therefore उनका शुगर उसकी वजह से deranged ना हो? राइट. सो जैसे मैंने बताया, आप जो आपकी जो डेली एक्सरसाइज या जो आपकी रूटीन है, आप उसको थोड़ा मॉडिफाई इस तरह से करें कि आपका जो सोशल जो कमिटमेंट्स हैं, आप उसको भी फॉलो कर सके, और एट द सेम टाइम यू कैन कंटिन्यू टू एक्सरसाइज. फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने गरबा की बात की, सो गरबा इटसेल्फ इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज, राइट. अगर आप गरबा करते हैं, so अगर आप if you are somebody who is into नवरात्रि एंड गरबा, इट्स अ वेरी गुड एक्सरसाइज ऑन इट्स ओन. तो मैं इंकरेज करूंगा, आप करें, बिल्कुल करें, आपको पसंद है, राइट. इट कैन बी अ सब्स्टिट्यूट फॉर अ रूटीन एक्सरसाइज, राइट. गरबा डांसिंग, अगेन फेस्टिविटीज भी है और एक्सरसाइज भी है. एट द सेम टाइम, जब दिवाली आएगी या दशहरा आएगा, राइट, आपके फैमिली मेंबर्स होंगे, फ्रेंड्स होंगे जो आपको मिलेंगे, तो मैं कहूंगा कि if you have somebody whom you are close to, your family friend, somebody, राइट, आप उनको वॉक करने ले जाएं साथ में, राइट. कि चलो यार, आप बहुत दिनों बाद मिले हैं, लेट्स गो फॉर अ नाइस वॉक इन दी गार्डन नियर बाय. सो एक्सरसाइज भी हो जाएगी, और आपसे बात भी हो जाएगी, आपसे वन ऑन वन इंटरेक्शन भी हो जाएगा. सो मैं कहूंगा कि यू नीड टू बी लिटिल क्रिएटिव. मैं समझता हूँ कि शायद वेकेशंस हैं, छुट्टियां हैं, आप लेट अपने फैमिली के साथ बैठे हैं, तो शायद सुबह उठ नहीं पाते हैं, लेकिन जब भी आपको समय मिले, जब भी टाइम मिले, यू यूज क्रिएटिव वेज, जिसमें आपकी जो, अगर आप अपने सोसाइटी में फ्रेंड्स को मिलने जाते हैं, तो मे बी यू कैन, इंस्टेड ऑफ टेकिंग योर टू व्हीलर और योर कार, perhaps you can take walk down to your family or friends, right, to meet them. So I think ये आप जो आपकी एक्सरसाइज रूटीन है, मैं समझ सकता हूँ कि शायद आप उतने लेवल का एक्सरसाइज शायद ना मेंटेन कर सके, लेकिन जहां पे भी आप एक्सरसाइज को अपने लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं ड्यूरिंग छुट्टियां एज वेल, इट वुड बी समथिंग which is going to be good, right. So आप जैसे आप वॉक करने जाएं, या आप अपने फ्रेंड्स को साथ ले जाएं, तो ये एक ऐसी चीज है जिसमें सोशल इंटरेक्शन भी रहेगा, उनकी भी एक्सरसाइज होगी, और आपकी भी जो डेली रूटीन है उससे आप जो डेली आप जो स्टेप काउंट करते हैं, या अगर आप कुछ एवरीडे 30-40 मिनट्स जो भी एक्सरसाइज का रेजिम करते हैं, आप उसको भी फॉलो कर सकते I think wonderful practical tips. Walk more, take your friends along, but don't compromise or don't slow down on your physical activity. Sir, as we are running out of time, I'll take one last aspect of this whole discussion, and that is around monitoring. Now, we know that in diabetes management, monitoring of blood sugar, tracking it plays a very very important role, and more so, इस समय में जब festivals हैं और diets can be deranged. Now, how should a patient approach his blood sugar monitoring? Now there is a lot of latest technology also which has come. Wearable devices are there. There are applications, digital applications which are available. How all these things can be used by a diabetic patient and do a good monitoring, and how can it help him? हैं. जी, बिल्कुल. सो अगर आप मॉनिटरिंग डिवाइसेस की बात करें, तो जो लेटेस्ट चीज है वो CGM, जो इसको कहते हैं, कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग, दैट इज नाउ इजीली अवेलेबल नाउ. अब पर्सनल यूज के लिए भी CGM इंडिया में अवेलेबल है. सो इट इज नाउ एज इजी एज ऑर्डरिंग इट ऑन Amazon. तो आप Amazon में जाके भी ऑर्डर कर सकते हैं CGM डिवाइसेस. सो दीज आर ऑल अवेलेबल. सिंपल सा चिप होता है जो आपके हाथ पे आपने लगा दिया, और वो 15 डेज के लिए इट विल कंटिन्यूसली मॉनिटर योर शुगर. एंड यू कैन नाउ, अब तो मोबाइल ऐप भी अवेलेबल है उसके लिए, तो आप मोबाइल ऐप से भी उसको स्कैन कर सकते हैं, और आपका रीडिंग आप पता कर सकते हैं, और आपके डॉक्टर या आपके जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उनके साथ शेयर कर सकते हैं. दिवाली के टाइम, फेस्टिवल के टाइम, आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया टू कंसिडर डूइंग CGM. तो आपको भी आइडिया आएगा कि जब फेस्टिवल्स होती है तो शुगर्स में क्या चेंजेस आते हैं, राइट. और ये इंफॉर्मेशन जो है वो आप आपके डॉक्टर्स के साथ शेयर कर सकते हैं, बिकॉज ये हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है. देखिए, हर पेशेंट अलग होता है, हर फैमिली का लाइफस्टाइल, खाने पीने का पैटर्न, एवरीथिंग इज डिफरेंट. सो अगर आप CGM मॉनिटरिंग करते हैं, और अगर आप मेटिकुलसली आपने सब डेटा रिकॉर्ड किया है, उसको आप अपने डॉक्टर्स के साथ शेयर करते हैं, तो डॉक्टर्स के लिए भी इट इज़ वेरी यूजफुल. बहुत सारे डॉक्टर्स ने हैव रिटन लॉट ऑफ आर्टिकल्स एंड रिसर्च पेपर्स ऑन वेरियस फेस्टिवल्स फॉलोड इन इंडिया, और उसका डायबिटीज पे क्या इम्पैक्ट होता है. फॉर एग्जाम्पल, दिवाली के टाइम, नवरात्रि के टाइम फास्ट के वक्त क्या इम्पैक्ट होता है, रमजान का फास्ट में क्या इम्पैक्ट होता है, क्रिसमस के वक्त जो खाना खाते हैं उसके वक्त क्या इम्पैक्ट होता है. सो डिफरेंट फेस्टिविटीज, लॉट ऑफ इंडियन डॉक्टर्स हैव रिटन, बट
इसी रिसर्च पे हम ज़्यादा भी अगर कंट्रीब्यूट करना चाहें, तो अगर आप सीजीएम डेटा लेते हैं, आप मेटिकुलसली इसको मॉनिटर करते हैं, तो वी एज डॉक्टर्स ऑल्सो गेट बेटर इंसाइट्स इनटू सेइंग कि आप जब फेस्टिवल्स होते हैं तो क्या व्हाट चेंजेस यू कैन मेक, एंड परहैप्स नेक्स्ट टाइम अगले साल हम यही डेटा को यूज करके वी कैन गिव यू बेटर एडवाइस इन टर्म्स ऑफ व्हाट यू कैन डू एंड व्हाट यू शुड अवॉइड इन टर्म्स ऑफ योर लाइफस्टाइल. सो मॉनिटरिंग टेक्नोलॉजीज का जितना भी आप यूज करें, इट इज ऑलवेज गुड, इट इज ऑलवेज एनकरेज. नए नए टेक्नोलॉजीज आते रहते हैं. जैसे मैंने बताया, अब तो यू हैव ऑल दिस थिंग्स नाउ विच यू कैन कनेक्ट विथ योर मोबाइल ऐप, विच यू कैन इजिली शेयर एज अ पीडीएफ विथ योर डॉक्टर, और व्हाट्सएप पे आप शेयर कर सकते हैं. सो इट्स वेरी इजी टू डू. सो थिंग्स आर बिकम वेरी इजी. आपके पास एक्सक्यूज नहीं है कि आप ना शुगर चेक करें. चाहे आप ग्लूकोमीटर यूज करें या सीजीएम यूज करें, there are no excuses, right? So you can still do it now, very easy. Very, very, very nicely, explained. So, monitoring will play a very, very important role. और आपको खुद मालूम पड़ जाएगा कि भाई मेरा ब्लड शुगर कहीं ऊपर नीचे तो नहीं हो रहा है, और अकॉर्डिंगली आप अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं, और अपनी शायद जो अगर मेडिसिन की अगर टाइट्रेशन करनी है तो वो भी की जा सकती है. बट मॉनिटरिंग इज वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट. सो आई थिंक टुडे वी हैव ट्राइड टू कवर ऑल द पिलर्स ऑफ diabetes management during festival time. Of course, the most important one is remaining vigilant and educating our own selves. And this program itself, is a attempt to educate all of us on this thing. We talked about the diet part very, very elaborately. Dr. Lakhani helped us understand कि कैसे manage करना है, कैसे discipline करना है. Physical activity, I think he has talked about to us practical tips, and he has also talked about the monitoring part of it. Of course, we haven't covered the medicines because that is between you and your doctor, and it is all individualized as well. I must thank you, Dr. Lakhani, for covering this topic. आज आपने हमें comprehensively इन सब चीज़ों के बारे में बताया. हालांकि समय समाप्त हो रहा है, लेकिन कुछ और चीजें हैं. But I think today we are finishing on time, so maybe some other day I will ask you those. But before I conclude, any closing remarks you like to give on this? या any thing जो important हमने आज अभी इस conversation में अभी नहीं ला पाए, और अगर आप उसको बताना चाहें तो. नहीं, मैं संजीव जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. और मैं फाइनली बिफोर वी कंक्लूड यही कहना चाहूँगा कि आई विश यू ऑल वेरी हैप्पी फेस्टिविटीज. दिवाली, नवरात्र, दुर्गा पूजो, वॉट एवर यू सेलिब्रेट, आई थिंक, आई होप दिस इज द बेस्ट ईयर फॉर यू टू सेलिब्रेट. आई थिंक और आप एट द सेम टाइम आप अपने ब्लड शुगर्स को अच्छी तरीके से बेटर वे यू आर एबल टू कंट्रोल इट. और अगली बार, जैसे मैंने बताया, आप जब दिवाली के बाद और फेस्टिविटीज के बाद जब आप मिलने आएंगे, so I should feel proud of the fact that despite having all the festivals, you are able to maintain good blood sugar control with good self discipline and social connect, right? So I think that is the message I'd like to give. And enjoy to the fullest, but keep your sugars under control. All right. So on this, positive note, we will conclude this program. Dr. Lakhani, thank you so very much. आपने अपना समय Thank you. निकाला आज. All our viewers who watched us live, or who would be, watching this program later on as well. अगर आपके फैमिली में या फ्रेंड सर्कल में किसी को है अगर डायबिटीज, तो आप इस प्रोग्राम का लिंक उनके साथ शेयर कर सकते हैं. ये डिस्कशन उनके लिए काफी यूजफुल हो सकती है, एंड दे वुड बी एबल टू मैनेज देयर डायबिटीज इन अ गुड वे. फेस्टिवल सीजन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स खुशियां मनाने के लिए हैं. सो आप सब साथ में इकट्ठे हों अपने परिवार के, खुशियां मनाएं, और इस फेस्टिवल सीजन में से खुशियां लेकर बाहर निकलें, अपनी बीमारी को लेकर बाहर ना निकलें. और आपने जो डॉक्टर लखानी ने हमें बताया, अगर हम ये सब चीजें फॉलो करें, सो डेफिनेटली आई थिंक वी वुड बी एबल टू मैनेज अवर डायबिटीज वेल एज वेल. So with this, thank you so very much, and good night, Dr. Lakhani, and good night to all my viewers. Thank you so much, Sanjeev ji. Good night.